Hello students, hope you all are doing well. My name is Mauli and today we are going to discuss our chapter 3 of unit 2, which unit 2's main theme is friendship, right? Okay, so without further delay, let's move into the chapter. Our chapter's name is the chair. Okay, so before starting the chapter, we have given some pre-exercise. Let's solve that first. Write two words that come on your mind when you think of friendship. What things come into your mind when you think of friendship? So first, in my mind it comes love and sharing emotions. This too is very important thing for me when it comes to friendship. It is subjective answer. You can write yours. Now find some more relative words of friendship and given below. You can search horizontally or vertically. There are 8 words. One word has been marked for the example. Okay. So हमें basically this is a very fun exercise in which you have to find 8 words from this whole box puzzle. First one is helpful. Second one is laughter. Okay, then next one we can see hope. So there are 8 words, okay, total 8 words are there. Then we can see trust, okay, then we can see caring, okay, then we can see next is support. Okay, so how many are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, okay. Next is loving. Yeah, okay. Yeah, so I have founded 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 for you out of 8. 1 you have to find it by yourself, okay. Now, filling the complete words. Filling the complete words which means the same as friends or friends with the help of the meaning. For example, they have given us one long sentence and you have to fill the blanks related to that. Like we solve synonyms like that. A person with whom you do activities together. आप किससे साथ अपनी activities करते हो? So, partner. Okay. An informal word for friends. आप अपने friends को formally तो हम friends बोलते हैं, mates बोलते हैं, पर informally क्या बोलते हो? My buddy, right? So buddies. Okay. Next, fill in the blanks to complete the words. Okay. So this 2 we have already solved. Now, a person who spend a lot of time with. आप अपने ऐसा कोई person जिसके साथ आप बहुत time spend करते हो, तो हमारा वो हुआ companion, है ना, companion. Children who are in the same class as you at school, जो आपके साथ पढ़ते हैं वो classmates. Okay. Now. There are so many words for a friend. What do you call your friend in your own language? Okay. आप अपने friend को अपनी language में क्या बुलाते हो वो आपको लिखना है. So it is subjective answer. So in Gujarati we call दोस्त. Okay. ये मेरा दोस्त है. या मित्र भी कहते हैं हम कोई बार. Okay. So now let's dive into our main story about the chair. Okay. So our main character here is Mario and his grandfather. Okay. So there was a boy called Mario who loved to have lots of friends. He showed off, मतलब कि boasted off, मतलब कि ऐसे लोगों के सामने ऐसे बढ़ाई हाँकना जैसे हम बोलते हैं, that he always talking about how many friends he had at school and how he was so friendly with everyone.
उसको ऐसा लगता था कि बहुत सारे फ्रेंड्स होना इज़ वेरी गुड थिंग एंड ही ऑलवेज शोड ऑफ अबाउट दिस थिंग। वो ऑलवेज बड़ा ही हाँकते रहता था कि मेरे पास तो इतने फ्रेंड्स हैं, आई एम वेरी फ्रेंडली विद एवरीवन इन स्कूल, एवरीवन नोज मी, ओके। वन डे हिज ग्रैंडफादर सेड टू हिम, मारियो, आई बेट यू अ फ्रूट चाट, you don't have as many friends as you think you have. I am sure many of them are nothing more than companions or partners. हमने अभी अभी एक्सरसाइज में देखा ये वर्ड्स, राइट। ग्रैंडफादर कह रहे हैं, बैट मतलब शर्त लगाना, मैं आपसे शर्त लगा रहा हूँ फ्रूट चाट की। किसकी शर्त है? फ्रूट चाट की, कि आपके पास फ्रेंड्स नहीं है। हाँ, पार्टनर और कंपेनियन हो सकते हैं जो हमारे साथ साथ चलते हैं, आते हैं, पर फ्रेंड्स आर समवन हु ऑलवेज लव यू, ओके, ऑलवेज सपोर्ट यू टू मूव फर्दर, बट यू हैव कंपेनियंस नॉट फ्रेंड्स। ये मैं आपको शर्त लगा के बता सकता हूँ, ओके। मारियो एक्सेप्टेड द बेट, उसको तो बहुत ही ज़्यादा विश्वास था अपने फ्रेंड्स पर। द बेट रेडीली मतलब कि एक्सेप्टेड, अग्री, रेडीली, विदाउट एनी हेजिटेशन और प्रॉब्लम। उसने बोला नहीं नहीं, मेरे तो फ्रेंड्स मुझे पक्का मालूम है, ओके। सो ही एक्सेप्टेड द थिंग। हाउएवर ही वाजंट श्योर हाउ ही कुड टेस्ट वेदर हिज स्कूलमेट्स वर रियल फ्रेंड्स और नॉट। उसको ही डजंट हैव एनी प्लान कि मैं कैसे चेक करूँ कि मेरे फ्रेंड्स रियल है या फिर दे आर जस्ट कंपेनियंस, ओके। सो ही आस्क्ड ग्रैंडफादर फॉर द हेल्प। उसने अपने ग्रैंडफादर से ही पूछा कि आप ही मेरी मदद कर दो। ही सजेस्टेड, आई हैव एग्जैक्टली वॉट यू नीड, इट्स इन द एटिक। एटिक मतलब जो हम स्टोर रूम बोलते हैं वो, द एग्जैक्ट मीनिंग इज अ स्टोरेज स्पेस इन हाउस जस्ट अंडर द रूफ, ओके। रूफ के नीचे जो होती है स्टोरेज स्पेस, मतलब कि समटाइम्स हम जो घर में ऐसी ऊपर छत होती है उसके नीचे जो स्टोरेज स्पेस होती है उसको बोलते हैं, और एल्स लेडर के नीचे ऐसी जगह होती है वहाँ पे जो होती है स्टोरेज स्पेस, उसे भी एटिक ही बोलते हैं, ओके। तो उसने ग्रैंडफादर ने बोला मेरे पास आपके लिए कुछ है, मतलब मेरे पास आपके लिए एक सोल्यूशन है, आप एटिक में जाओ और कुछ लेके आओ, मैंने आपको जो बोला है वो। नो, ग्रैंडफादर हिमसेल्फ टोल्ड कि मैं जा रहा हूँ और लेके आ रहा हूँ, वेट। सो ग्रैंडफादर लेफ्ट, सून रिटर्निंग कैरिंग समथिंग इन हिज हेड, बट मारियो कुड सी नथिंग देयर। सो ग्रैंडफादर ने बोला देखो मैं ये लेके आया हूँ और आपको कुछ, ओके, ये लेके आया हूँ, आपको कुछ दिख रहा है मेरे हाथ में? एग्जैक्टली लाइक दैट ग्रैंडफादर टोल्ड कि देखो मैं ये लेके आया हूँ। मारियो बोला मेरे को तो कुछ दिख नहीं रहा है, ये क्या है? टेक इट, इट्स वेरी स्पेशल चेयर। ग्रैंडफादर ने बोला कि लो, आप ये लो, ये बहुत ही स्पेशल चेयर है। एज इट इज इनविजिबल, क्योंकि क्यों नहीं दिख रहा है? बिकॉज इट इज इनविजिबल, इम्पॉसिबल टू सी। It's rather tricky to sit, but if you take it to school, manage to sit on it, then the magic will work. Then the magic will work, and you will be able to tell that who is your real friend, who your real friends are. मतलब ये लो, ये चेयर लो, ये स्कूल में ले जाओ और स्कूल में जाके आपको इसके ऊपर बैठने की कोशिश करनी है, और तब आपको, जब आप बैठने की कोशिश करोगे तब आपको पता लगेगा कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है या आपका अच्छा फ्रेंड कौन है। सो यू कैन सी इन द पिक्चर कि ग्रैंडफादर उसको कुछ इनविजिबल, ये लाइनिंग्स भी हमारे इन कॉन्टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स इसके लिए दी हुई है, मेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, इसके लिए दिया हुआ है ये लाइनिंग्स भी, पर वो इनविजिबल चेयर मारियो को दे रहे हैं, ग्रैंडपा एंड मारियो, ओके। Okay, now we have some questions. Mario was very proud having many friends. It is true or false? Of course it is true. He was always showing off in front of everything. What did the grandfather take from the attic? So the grandfather, take का क्या हो जाएगा? Did है तो took chair
from the edit. Will Mario face any challenges? What do you think? Mario कुछ चैलेंजिंग फेस करेगा? मुझे ऐसा लगता है कि yes, because चेयर ना इनविजिबल थी, तो चेयर रखोगे और आपको दिखेगा नहीं कि क्या है, कहाँ पे है चेयर. सो शायद आई एम गेसिंग दैट ही विल मैरियो बी एबल टू यूज द मैजिक. यस, वो हम देखेंगे कैसे. ओके, आई नो द फर्दर स्टोरी सो आई कैन से यस. यस, सो अवर सेकेंड पार्ट बिगिंस हियर. Mario brave and determined मतलब very focused, firm in his decision to took the strange invisible chair set off for school. At break time he asked everyone to form a circle. वो ले गया स्कूल में. ब्रेक टाइम में बोला आपने एक सर्कल बना लो. ओके, सभी फ्रेंड्स को बोला. He put himself in the middle. सर्कल बनाया सबने और वो अपने आप को ऐसे बीच में खड़ा हो गया. ये He put himself in the middle with the chair. यहाँ पे उसके पास चेयर थी, वो इनविजिबल वाली वो. Nobody move. You are about to see something amazing. Amazing मतलब surprising. उसने बोला कोई हिलेगा नहीं आपसे. ओके, आप लोग कुछ अमेजिंग देखने वाले हो. You are going to see something very surprising. ओके, उसने ऐसा पहले ही हम बोलते हैं ना, डिस्क्लेमर दे दिया कि हिलना मत, आप कुछ अमेजिंग देखोगे यहाँ पे. ओके, now the final part comes. Mario tried sitting on the chair, having difficulty seeing it. He missed and fell straight onto the back side. His classmates had a pretty good laugh. पहली बार ट्राई किया बैठने का और वो पीठ के बल गिरा. बैक साइड मतलब पीठ के बल गिरना. ओके, गिरा. वेट जस्ट स्लाइड टेक्निकल प्रॉब्लम. अब उसने कहा रुको कुछ दिक्कत आ रही है, टेक्निकल इश्यू है, मेरा कोई वो नहीं है. ट्राइंग अगेन बट अगेन ही मिस्ड, कॉजिंग मोर सरप्राइज लुक्स एंड लाफ्टर. बहुत सारे लोग हंसे उसके ऊपर क्योंकि वो गिर रहा था, उठ रहा था, गिर रहा था. इट वॉज वेरी एम्ब्रेसिंग टू. बट कोई लोग थे जो उसका सपोर्ट भी कर रहे थे. नाउ सी, Mario wouldn't give up. He kept trying to sit on the magic chair, kept falling on the ground until suddenly he tried again and didn't fall. Okay? और फिर क्या हुआ? Finally, एक बार उसने ट्राई किया और फाइनली वो बैठा इनविजिबल चेयर पे. So the invisible chair was not the fake one. The chair really existed but was invisible. This time he sat hanging in the mid chair. Of course, वो चेयर होगी, इनविजिबल चेयर है, उसके ऊपर वो बैठा है मारियो. अब जस्ट इमेजिन करो कि ये चेयर नहीं है तो वो कैसे दिखेगा? हैंग करता हुआ दिखेगा ना. देन ही फाइनली एक्सपीरियंस द मैजिक दैट हिज ग्रैंडफादर हैड बीन टॉकिंग अबाउट. अब यहाँ पे फ्रेंड्स ढूंढने का क्या मैजिक हुआ? ओके, कैसे मारियो ने फ्रेंड्स ढूंढे होंगे? व्हाट डू यू थिंक? ओके, लुकिंग अराउंड मारियो. सो अब उसने ना आसपास जब देखा, फाइनली वो बैठ गया था जब चेयर के ऊपर, तब उसने आसपास देखा कि कौन है. गुनीत, अस्मा एंड दीपा. 3 of these buddies holding him up so he wouldn't fall. ओके, अब कौन उसको पकड़ के रखा था? उसको कौन थे जिसने उसको मारियो को पकड़ के रखा था? गुनीत, अस्मा एंड दीपा. उन्होंने उसको पकड़ के रखा था कि वो गिर ना जाए. सो एक्चुअली वो हैंग हो रहा था उनकी वजह से. ओके, मीनवाइल मैनी अदर्स he would thought as friend done nothing but made fun of him, enjoying each and every fall. दूसरे को, पूरी स्कूल को ही दोस्त मानता था ना, तो वो लोग तो उसके ऊपर सिर्फ हंसे ही जा रहे थे. Living with his 3 friends, he explained to them how his grandfather so cleverly thought of a way to show him that true friends are those who care for us. A friend wouldn't be someone who takes joy in our bad luck. Nowadays, as I witness, that many students have friendship for their own benefits. ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई में या फिर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में आगे बढ़ने के लिए किसी ना किसी को फ्रेंड्स बनाता है. दे हैव कॉम्पिटिशन इन फ्रेंडशिप टू.
Okay, so real friendship is not that. Sometimes you have to forget all your burdens and just be how exactly you are with your friends. Then only you will able to see that how that friend is with you and who is your best friend and who is not. Okay. That evening the 4 children, Mario, Asma, Deepa and other one guy friend, what was his name? गुनीत, यस गुनीत, ये चारों लोग गए घर पे. ओके, ही हैड वॉन द बैट बिकॉज मैरियो के ग्रैंडफादर तो वॉन हो गए थे, मतलब बैट जीत गए थे उन्होंने. दे हैड अ ग्रेट टाइम लिसनिंग टू स्टोरीज एंड ईटिंग अ लॉट ऑफ फ्रूट चाट. From then on they used the magic chair to taste many occasions and whoever passed became their friends for life. Okay. So he had won the bet. Okay. So apparently कौन जीता था बैट? मैरियो के ग्रैंडफादर. और वो लोग फ्रूट चाट खा रहे थे. ओके, साथ में बैठ के. एंड दे ऑल्सो हैड वन थिंग दैट उन्होंने ये चेयर का बार बार यूज किया टू टेस्ट who actually their friends are and who is not. So this is how, see, this is the picture. कैसे ये तीनों ने, गुनीत, दीपा और अस्मा ने उसको होल्ड करके रखा था. द चेयर डजंट एग्जिस्ट और बाकी लोग तो सिर्फ उनकी मजाक ही उड़ा रहे थे. ओके, सो द टाइटल चेयर इज प्रूवन करेक्ट हियर. ओके, Mario successfully sat on invisible chair on his first attempt. True or false? Of course false. He fell many times. So what they have given, that Mario's grandfather challenged him for what? Challenged him to find true friends. To suggest him that actually your friends are not the real ones. Okay, you have not many friends. So we can say bet of to find true friends. Okay. Here our chapter ends. Hope this is clear and hope you also find your best friend for life. Thank you so much.